are you guys? Fine. Fine. Doing well. चलो Yes. before we start the session एक बार अपने बारे में बता दो थोड़ा brief. अपने बारे में. My name is Aditya Singh Okay. and I have read in college BBA Okay. in Manav Rachna, Faridabad University. Okay. Excuse me, sir. Hello. Gaurav sir आ गए. Hello. Hi Gaurav. Hello, sir. How are you? I'm fine, sir. Actually, I'm the host of a cat buddy. So, shall I start for your due permission? Yeah, definitely. Yeah. So, hello So guys. who all are the so can you just tell me who all are the participants? So Aditya Singh is there. Then someone is connecting. Actually, 4 participants are there only. Okay. हाँ. So, shall we wait for 5 minutes? Let them join. Yeah, we can wait for sure. Okay. No worries. Buddies, we will start in just 5 minutes. Let them connect. Okay, sir, we are starting. So, hello guys, my name is Gaurav, आपका दोस्त, आपका host, cat buddy का. So, we have Raghav Maheshwari sir. So, today is the workshop. हमारा workshop है total investment banking के ऊपर. Sir, totally Yes, features sir. बताएंगे कि investment banking के बारे में कैसे क्या चीज़ है from the deep एकदम advanced तक. So, please sir, tell us about something your. Thank you. Okay, so let's start from the beginning. So basically currently I'm working with an investment bank named as Credit Suisse. आजकल काफी चर्चाओं में है ये बैंक, उसका रीजन भी अलग से बताऊंगा मैं. And before this I was working with a consulting firm EY, Ernst and Young, Big Four. So that's all about my professional journey. And yes, अगर college की बात करें then I'm also from Manav Rachna only, and I did my BTech in computer science, and then I started my journey into consulting, then into investment banking. गाइस बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता सकता हूँ ये पूरा इंटरेक्शन सेशन है एकदम आपके ऊपर डिपेंड है कुछ भी डाउट वगैरह हो बेझिझक जस्ट म्यूट योर अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चंस सो प्लीज सर चल ओके, तो कौन कौन लोग हैं अपने? सो विशाल इज हियर, नूर आलम, गौरव. सो हाय विशाल, हाय नूर. कैन यू प्लीज ओपन योर माइक एंड वीडियोस? Hello, sir. Guys, can you please open your mic and videos? Gaurav, on can you guys please ask them? yes sir come on Noor actually we should have left the meeting Noor please turn on your mic and camera Hello, sir. Hi Noor, how are you? Sir, I'm fine. आप कैसे sir? All good, all good. यार शर्मा वर्मा हो मत, थोड़ा कैमरा वैमरा ऑन कर लो. इंटरेक्टिव सेशन है पूरा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी. रास्ते में हूँ इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा. Okay. Fine. So let's just let me just share my screen and let's just start the session. I hope it's visible to you guys. of course yes sir Okay. So basically our today topic for the discussion is investment banking. And within investment banking, we guys will be talking about the risk management part. Okay. So basically, what is investment banking? We'll talk about that also. Like what companies are associated with investment banking. We'll be deep diving into that also. And what is risk management into investment banking? Like what is the meaning of risk management? And what does the company do to mitigate risk? So basically, these are today topic regarding the investment banking. Okay.
सो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में जान के सबसे पहले थॉट क्या आता है मन में? लाइक व्हाट्स द फर्स्ट थॉट? लाइक हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी बैंक के अंदर, लाइक प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट, ओके, और जैसे कि एफडी हो जाता है, फिक्स डिपॉजिट अगर हम बैंक के करते हैं तो कुछ इंटरेस्ट हमें मिलता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। चलो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ। जो आप लोग एफडी की बात कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट, ये हमारे रिटेल बैंक्स होते हैं। बट लाइक बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन, क्रेडिट स्विस, गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक, ये जनरली एफडीज प्रोवाइड नहीं करते। सो और क्या क्या आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जब नाम सोचते हो? सबसे पहला थॉट तो मेरे हिसाब से एक ही चीज आता है यार। मैं अपने कॉलेज लेवल पे जब सोचता था, सो अकॉर्डिंग टू मी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाज लाइक पैसा पैसा पैसा, खूब सारा पैसा होगा इसमें, करेक्ट? True. मतलब यार इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओ तो खूब पैसे हैं। और उसके बाद हमने एक मूवी भी देख ली, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें ऋतिक रोशन की लाइफस्टाइल देखी हमने, यार वो भी बंदा इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तो हमने सोचा यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है, एक बार पता करना चाहिए, करेक्ट? ऑब्वियसली। सो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट थॉट आता है ना, वो है पैसा। कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पैसा बहुत मिलता है, लाइक इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज खूब सारी हैं। लाइक हाउ कैन वी गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन, हम कैसे इसके अंदर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब चीजें आज हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, सो कुछ हमारी मेजर कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डील करती हैं आजकल। सो इंडिया में आप लोगों ने टॉप शॉट कंपनी सुनी होंगी, जेपी मॉर्गन, जेपीएमसी, हाँ जी। क्रेडिट स्विस सुना होगा, इट्स अ स्विस बैंक, एंड गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक भी सुना होगा एक आपने, आई एम डैम श्योर। तो बेसिकली सिटी बैंक इज काइंड ऑफ नॉट मोर देन एन इन्वेस्टमेंट बैंक राइट नाउ। अब उसका रिटेल जो पूरा सेगमेंट है वो एक्सिस बैंक को पूरा सेल हो गया है। तो बेसिकली जो भी ऑपरेशंस पार्ट है इंडिया का, वो सारा आजकल अब एक्सिस बैंक हैंडल कर रहा है फॉर सिटी बैंक। बट लाइक व्हाट डज दिस कंपनी डू, आज हमारा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए सबसे, करेक्ट? सो एनीबडी, किसी को कुछ आइडिया है कि कंपनीज करती क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सेक्टर में? व्हाट डज गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन डू? एनी आइडिया, कोई गेस कर लो। सर शायद से जिस 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 इंडिविजुअल को या फर्म को अगर किसी भी ते होंगे। तो यू आर नॉट ऑडिबल। हु इज नूर, दिस? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आई थिंक सर नेटवर्क इशू। आदित्य, यू वांट टू टेक अ गेस? Yes, sir. यू वांट टू टेक अ गेस कि कंपनीज करती क्या क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की? Company करती क्या? JP Morgan. I ओके, am don't नो know. वरीज, आई टेल यू। सो बेसिकली जब आप इंडियन सेगमेंट्स के अंदर जाते हो, लाइक इंडियन सेगमेंट्स के अंदर हमारे काफी सारे बैंक हैं। लेट मी जस्ट शेयर दी जूम स्क्रीन आल्सो, ताकि देखता रहूं मैं आप लोगों को। सो बेसिकली जब भी हम इन्वेस्टमेंट लाइक बैंक्स की बात करते हैं, तो इंडियन बैंक्स हमारे जनरली कौन कौन से नाम हमारे आते हैं? एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। सो बेसिकली इसके लिए इन्वेस्ट, जब हम इसमें अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो जनरली हम तीन चार चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लाइक या तो हमने सेविंग अकाउंट में पैसे डाल के छोड़ दिए, या तो हमने करंट अकाउंट अपना बिजनेस वाला डाल दिया, या हमने फिक्स डिपॉजिट कर दी, या हमने म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए। ये चार पांच चीज़ें ही आती हैं इंडियन वालों के दिमाग में, करेक्ट? ऑब्वियसली। तो बेसिकली यहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता। आप 10 रुपए से लेके हजार, लाख, करोड़ रुपए कितने तक रख सकते हो इंडियन बैंक्स में। बट जब बात इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की आती है, तो उसमें हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो ये नहीं कि वहाँ पे हर कोई जा सकता है, डेफिनेटली नॉट। सो लाइक मिनिमम गेस करो, लाइक व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट वी नीड टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट बैंक? एनी गेस, कितना अमाउंट चाहिए होता है? सर 100 करोड़। मच अबव मिनिमम, दैट इज बेयर मिनिमम। लाइक बेयर मिनिमम इज लाइक मिनिमम 500 करोड़। अगर आपके बैंक अकाउंट में 500 करोड़ है, देन यू कैन इमेजिन ऑफ द टू इन्वेस्ट इन आईबी। आईबी इज इन्वेस्टमेंट बैंक। ये तो मतलब एवरेज के हिसाब से होता है ना, लाइक मिडिल क्लास इतना नो नो, इतना दिस कर इज नॉट एन सकता है। एवरेज, दिस इज नॉट एन एवरेज। अब फॉर एग्जांपल एक चीज लेते हैं, अगर कोटक महिंद्रा बैंक में आज मैं जाता हूँ तो मेरे को अपने फ्रेश अकाउंट खोलना है, तो उनका पहला ये रहेगा कि सर मिनिमम बैलेंस तो सर 10,000 आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ जी। मिनिमम बैलेंस होता है। सो यहाँ पे मिनिमम बैलेंस नहीं होता, मिनिमम एक अमाउंट होता है जो हमें मिनिमम इन्वेस्ट करना है, दैट इज 500 करोड़।
तो जनरली अच्छा, हमारा जो जैसे कंपनी सारी इसका जितनी भी आईबी कंपनीज हैं ये सारी इंडिया में ऑपरेशंस करती हैं, बट यहाँ से इन्वेस्टमेंट बैंक का काम नहीं होता जनरली। इंडिया इज जस्ट ओनली नोन फॉर द ऑपरेशन पार्ट। जितने भी आईबी के सेगमेंट्स होते हैं, जितने भी वर्किंग रहती है, डोमेन जितना भी रहता है, वो सारा हमारा रहता है बाहर से, फॉर न्यूयॉर्क, लंदन, स्विट्जरलैंड, सारा काम वहीं से होता है। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स बैठते हैं, सारे लोग बैठते हैं, सब लोग वहीं बैठते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हम कहाँ पैसा जाता है? लाइक मैंने अगर इन्वेस्टमेंट बैंक को 500 करोड़ दिया, वो क्या करेगा 500 करोड़ का? किसी को आइडिया है? एनी गेसेस? तो वो लाइक लोन वगैरह पे देने लग जाता है। नहीं यार, वो इंडिया में होता है, बाहर नहीं होता। वो इंडिया में होता है। एनी गेस? आदित्य, नूर? नूर, विवेक, कोई है यहाँ पे सेशन में? गायब। आदित्य, यू वांट टू टेक अ गेस? Yes. यू वांट टू टेक अ गेस कि ये लोग करते क्या है 500 करोड़ का? लाइक जब हम इन्वेस्ट करते हैं, निकाल रहा है अमेजोन ने अभी 10,000 एम्प्लॉयज लेड ऑफ कर दिए, ट्विटर ने निकाले अभी, जैसे ट्विटर का तो पूरा मैनेजमेंट चेंज था, बट अमेजोन ने अभी 10,000 एम्प्लॉयज निकाले, माइक्रोसॉफ्ट निकाल रहा है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टर्म लेड ऑफ? क्या होता है? व्हाट इज लेड ऑफ? सो बेसिकली लेड ऑफ इज द कंपनी इज गेटिंग अंडर अ लॉट ऑफ लॉस। लाइक कंपनी का रेवेन्यू फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज है और साल का सिर्फ अगर वो 60 रुपए कमा पा रही है, तो डेफिनेटली कंपनी लॉस में जा रही है। तो कंपनी इस केस में क्या करती है? वो अपने एम्प्लॉयज को लेड ऑफ करती है, जो बेसिकली द वन हु आर अर्निंग अ मोर अमाउंट। ओके, जस्ट अ सेकंड। स्लो है नेट। ओके, सो कंपनी आजकल क्या कर रही है? लेड ऑफ कर रही है अपने एम्प्लॉयज को। तो ऐसे केस में हमारे क्रेडिट स्विस या बाकी जितने बैंक हैं, ये सारे लॉसेस में जा रहे हैं। अब इनको लॉस रिकवर डेफिनेटली करना पड़ेगा अपने बैंक को सस्टेन करने के लिए मार्केट में। सो द थिंग इज कि अभी फंडिंग उठाते हैं मार्केट से, बट यहाँ पे सारे जो बात होती है दैट इज अबाउट गुडविल एंड फेस वैल्यू। कि क्रेडिट स्विस एक स्विस बैंक है, डेफिनेटली उसकी आधी जीडीपी हमारी यूरोप की जितनी भी रेवेन्यू है, जितना भी, अगर मतलब ये समझ लो अगर बैंक बंद हो जाता है, डेफिनेटली यूरोप में पूरा भौकाल आ जाएगा, जिसे कहते हैं ना भौकाल। इट्स लाइक दिस कि पूरा भौकाल आ जाने वाला है। सो इस केस में हमारे सऊदी, लाइक सऊदी का जो प्रिंस है, उसने हमें 1.5 बिलियन डॉलर्स हमें दिए हैं, यू नो, सो दैट वी कैन जस्ट सेव अ बैंक। Oh, hi Vivek. Finally, यस सर। someone is more on the camera. How are you? अच्छा हूँ सर, आप बताइए। All good, all good. So basically हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात कर रहे हैं। आई होप आप सेशन में थे। यस सर। ओके, सो एनी क्वेश्चंस अभी तक कुछ किसी को, जितना बताया हल्का फुल्का? एनी डाउट्स? विवेक, आदित्य? मुझे तो नहीं है बिल्कुल। और किसी गाइस लाइक विशाल, नूर? No. ओके, विवेक, सॉरी विशाल, विवेक, हाँ करेक्ट। नूर, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ? अच्छा, नूर ड्रॉप द सेशन। तो शायद नेटवर्क इशू वगैरह चल रहा था पहले। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, सो बेसिकली अब हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम कैसे करता है। सो आदित्य, लाइक अभी कौन से सेम चल रहा है? विवेक, कौन से ईयर में हो, कौन सा सेम चल रहा है? थोड़ा अपना ब्रीफ मेरा बताओ। फर्स्ट मेरा फर्स्ट ईयर है बीबी में। फर्स्ट ईयर बीबी में। और आदित्य, व्हाट फर्स्ट अबाउट यू? सेमेस्टर। व्हाट सर? आदित्य, व्हाट अबाउट यू? My also first year. फर्स्ट ईयर। देन डेफिनेटली आई थिंक 3 साल के बाद जॉब की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, प्लेसमेंट एंड ऑल। यस सर। तो ट्रस्ट मी, जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए अगर तैयारी करनी है तो स्टार्ट कर देना फ्रॉम डे वन। ओके सर। बिकॉज जितनी भी जनरली कंपनीज जो पैकेज ऑफर करती हैं, दैट दे ऑफर इज अराउंड 3.5 to 4 lakhs per annum. ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी लो देन अदर कंपनीज। सो इट्स बेटर जस्ट गियर अप योर स्किल्स। थोड़ा पुश एंड हार्ड करो यार, थोड़ा दिन रात एक करनी पड़ेगी थोड़ी जॉब के लिए, बट डेफिनेटली यू कैन लैंड अप टू लाइक 16 to 17 LPA per annum, like 16 to 17 lakhs per annum. That is a good amount one can receive.
सो डेफिनेटली अब आप सोचोगे यार 16-17 लाख किस में मिल सकते हैं, या तो बंदा अगर इंजीनियर होगा तो उसको मिल सकते हैं, करेक्ट। बंदा अगर कोडिंग करता है तो डेफिनेटली उसको मिल यस सकते सर। हैं। अब इसी सेगमेंट में हम अगर जब जाते हैं तो दो फर्म्स आती हैं हमारी बेसिकली। एक आती है हमारी कंसल्टिंग की फर्म्स, आपने बिग फोर सुना होगा, बिग फोर की कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, एनी आइडिया? बिग फोर की कंपनी। अच्छा, डिलॉयट, केपीएमजी, ये सब नाम सुना है कभी? नो सर। KPMG का सुना है सर। So basically, there are four companies. So basically, it's a bunch of companies, bunch of consulting companies. So basically, first is our EY, second is Deloitte, डिलॉयट। third is PwC, Deloitte. and fourth is KPMG. So basically, these four companies deal into consulting process. अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से इसका लिंक क्या है मैं वो बताना I'll tell you that also. So basically, इन्वेस्टमेंट बैंकर एक कंसल्टेंट होता है जो बेसिकली आपके सारे लाइक ही इज जस्ट टेकिंग अमाउंट एंड जस्ट इन्वेस्टिंग इन सम पार्ट, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली वो एक रिस्क मैनेजमेंट एक टेस्ट करता है प्रॉपर, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर से पैसा लेता हूँ एंड आई इन्वेस्ट इनटू माय बैंक लाइक इन ऑल दीज शेयर्स एंड ऑल, तो डेफिनेटली मतलब रिस्क क्या क्या अराइज हो सकते हैं हमारे, एंड हाउ कैन वी मिटिगेट दैट रिस्क। लाइक आदित्य ने मेरे को एक चीज कही थी, मान लो कल को फ्लड आ जाए, वो ऑफिस भेजे,